So good morning all. In this video lecture we are going to see some practical programs which are depending on our previous 3 lectures. Practical program means I am going to tell you how to write C++ programs in Turbo C++. So when you open Turbo C++ on your machine, it is like this. If you see, there are some menus which are present. One is file, in which you can create a new file, open an existing file, save your current file, save as your current file with different name, save all opened files are saved, then change directory, print -shell and quit. In edit menu, it is just like a Word in which you can uh, cut, copy, paste, clear, redo, undo, all these options are present. In search, find, replace. Then main menus are these two. One is compile and another one is run. We are going to use only compile. Shortcut key for that is Alt F9. And for executing the program we are going to use run, that is Control F9. Then there are some other options also that we are not going to use right now. Now first of all, we are going to write our first program. Suppose that is program to display hello world onto screen. As I told you previously that to write C++ program, it is necessary that you should include two basic files. #include iostream.h and #include conio.h. To write C in C out, iostream is necessary, and to use CLR-SCR, that is clear screen and get ch, conio.h file is necessary. Now write down void main, open curly brace and closing curly brace. As I told you, normally in initial stage all programs should contain these things. So what I have to do, I have to save this program as suppose x.c. Now if I want to write hello world program, then what I have to do, I have to make changes in this program and then save as this program as hello.c suppose. Now to write hello world program, see, this is the normal structure that you have to include files, then there are global variables. In this program we are not using any variable, that's why it is not necessary. Then main function, void main, and here first statement, your first statement should be CLR-SCR. Rather, if you save the things x.c with these two statements also, then also it is okay. Means I will save this file x.c. Now I want to print hello world onto screen only. So here I have to use cout statement, which is considered as an output statement used in C++. So cout hello world and then give semicolon. So first statement is used to clear the contents of the screen, second statement is used to display hello world, and third statement is used to read one character from keyboard. Get ch is used to read one character from keyboard. So after writing all these things, click on save as and give this program name as suppose hello1.c.
Here you will get your program name here, hello1.c. Now compile the program. Okay, there are some errors. One minute. Here you have to save the program as hello1.c, nahi, hello1.cpp. Okay. Now here program name is hello1.cpp. Now if you compile the program and execute it, then you will get the result hello world. If I want to print these two words on separate lines, then simply use the escape sequence character which is used in C/n. Now if you compile the program and execute it, two words are displayed on different lines, hello and world. So you can use escape sequence characters as it is. अब मैंने उस दिन आपको जो बताया था कि what will happen, see, if I comment this line and when I compile the program, then there are three errors, but how many number of lines are present in the program? Lines compiled are 10. Which are those lines? This is my first line, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. So number of lines are 10. Now if I replace this first, if I replace this or delete this first comment and compile the program, then you will see number of lines compiled are 885. Just I have removed one comment from the program and you will get, instead of 10 there are now 885 lines. Now if I remove this second comment also and compile the program, then I will get 1033. Now where these lines are coming from? My program contains only 4 to 5 lines ना. So from where ये सभी लाइन्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं hash include, which is a preprocessor directive. Preprocessor means what? Before processing my program, process that file iostream.h. Before processing my program, process that file conaio.h. So these are nothing but the number of lines which are present in iostream.h, conaio.h plus my current program. So this is my first program, hello1.cpp. Now after that we have seen a concept of variables. Now I will write simple program to display addition of two numbers, suppose. So here I have to declare variables, suppose integer a and b, these are the given two numbers, and c holds the addition. Here instead of hello world I have to write enter two numbers. This one is the best practice to write the program, that before using any cin statement you can use one cout statement so that user can understand how many values to be given. अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा? ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा, तो मुझे 2 वैल्यूज देने हैं, 3 वैल्यूज देने हैं, ये मुझे मालूम नहीं है. सो इट इज़ बेटर टू हैव अ सी आउट स्टेटमेंट बिफोर सी इन. सो दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट. नाउ इनपुट स्टेटमेंट इज सी इन, जैसे कि हमने देखा था सी इन ए बी. 2 वैल्यूज मुझे रीड करने हैं, मीन्स पहले क्या डिस्प्ले होगा? एंटर टू नंबर्स एंड देन मुझे 2 वैल्यूज देने हैं. आफ्टर दैट आई हैव टू राइट C is equal to A plus B and C out. I will write something, addition is, and then C. Save program as, suppose add1.c. I have so many programs in my directory, so we will check. Yes, add1.cpp.
Now this is my second program, that to make addition of two numbers. We will change this also. Program to display hello world की जगह program to display addition of two numbers. Compile the program, enter two numbers, give any two numbers, suppose 23 and 56, addition is 79. Here getch बहुत ज़्यादा एफर्ट प्ले करता है. देखो अगर मैंने ये getch नहीं दिया तो क्या होगा, और CLR STR भी नहीं दिया तो क्या होगा. ये दोनों को मैं कमेंट कर लेता हूँ, कंपाइल एग्जीक्यूट. तो पहला जो रिजल्ट है वो एज इट इज रह गया. फिर मुझे उसने दो नंबर मांगे, सपोज 34 एंड 65. एंटर मारती ही इससे पहले हमारा रिजल्ट रुक गया था, लेकिन यहाँ पे एंटर मारने के बाद मैं सीधा एडिटर में आ जाऊँगा. मीन्स आफ्टर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, to read one character from keyboard, it is not necessary that you should have a enter. To read one character from a keyboard and then, अब देखो अब मैं रन करूंगा, CLR SCR भी लिख दिया है मैंने, तो ये पूरा स्क्रीन जो है पहले का वो निकल जाएगा. अब मुझे दो नंबर देने हैं, सपोज 699 एंड 444. रिजल्ट इज 11 एंड 43. इसके बाद अब मैं जब कोई भी की प्रेस करूंगा तो फिर वो प्रोग्राम में आएगा. सो getch इज यूज टू रीड वन कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड. कीबोर्ड से एक कैरेक्टर रीड करने के लिए. और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वाइड नहीं लिखा तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वार्निंग. सी व्हाट इज दैट वार्निंग? फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू. व्हाई? बिकॉज मेन, as there is no return type for the main function, default data type is integer. So either you have to write return 0 after getch के बाद return 0 लिखो तो भी चलेगा. अब वो वार्निंग चली जाएगी, देखो. यस, या आपको रिटर्न 0 नहीं लिखना है तो इट इज बेटर टू हैव void बिफोर मेन. void मीन्स दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. इसको भी मैं सेव कर लेता हूं. अब मैंने उस दिन जो आपको कहा था कि एक प्रोग्राम लिखो और उसको सेव करो, उसी तरह से हमारा चल रहा है. अब मैं ऐड को ही थोड़ा सा चेंज करूंगा. सपोज देयर इज अ प्रोग्राम. अब हम आ गए हैं इफ स्टेटमेंट के ऊपर. सो प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स. 3 नंबर में से मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है. तो उसके लिए मैं प्रोग्राम कैसे लिखूंगा? बाय यूजिंग इफ. तो 3 नंबर यहाँ पे है. 3 नंबर के साथ मुझे और एक वेरिएबल लूंगा मैं. सपोज मिन मीन्स मिनिमम नाम का एक वेरिएबल है. सी आउट एंटर 2 नंबर की जगह अब मुझे कितने नंबर रीड करने हैं? तो 3 रीड करनी है. ये प्रोग्राम को मैं फिर सेव एज कर लेता हूं और इसको नाम देता हूं smallest.cpp. एंटर 3 नंबर्स. सी इन ए बी तो है, इसके साथ मुझे तीसरे नंबर की भी वैल्यू रीड करनी है. सो दैट वैल्यू इज सी. नाउ हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम? सपोज मैंने आपको एक ही नंबर बताया पहले 45, और 3 नंबर है लेकिन एक ही नंबर दिया है 45. तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 45 हुआ. उसके बाद मैं अगर दूसरा नंबर लिखता हूँ 55, अब स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 45 ही है. और उसके बाद मैं 7 लिखता हूँ, अब स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 7. तो हमारे दिमाग में ये जो प्रोसीजर हुआ है, वो प्रोसीजर को कागज पे लिखना, उसको एल्गोरिथम कहते हैं. और उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में डालना, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं. ना पहले मैंने क्या किया? 45 लिखा था, तो पहले मैंने स्मॉलेस्ट कौन सी कंसीडर किया? पहली वैल्यू जो है वो मैंने स्मॉलेस्ट कंसीडर किया. तो पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा मिन इज इक्वल टू ए. ठीक है, तो 45 स्मॉलेस्ट हो गया.
उसके बाद मैंने 55 लिखा, फिर भी आपने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट इज 45. वाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग दिस 55 विथ 45. सो 45, 55 एंड 7, दीज कॉन्स्टेंट्स, उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम में कहाँ पे है? ए बी सी, ये रिप्रेजेंटेशन है उनका. तो मिनिमम इज इक्वल टू ए. पहले मैंने पहला जो नंबर है उसको मिनिमम कंसिडर किया, उसके बाद जब मेरे पास दूसरा नंबर आया, सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू कंपेयर दिस टू नंबर्स. और कंपेयर करने के लिए मुझे इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. इफ बी इज लेस देन मिनिमम, अगर आगे जो नंबर आ रहा है दूसरा, उसकी वैल्यू मिनिमम से अगर कम है, ये नहीं लिखना है, मिनिमम से अगर कम है, तो मैं लिखूंगा मिनिमम इज इक्वल टू बी. है क्या? लेकिन यहाँ पे नहीं है. सो इफ स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन एंड देन ओनली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, अदरवाइज गो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगले स्टेटमेंट की तरफ जाओ. उसके बाद मेरे पास आ गया 7, विच इज सी. यहां पे भी वही कंडीशन रहेगी कि इफ सी इज लेस देन मिन, देन मिन इज इक्वल टू सी. और उसके बाद हमें लिखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, सी नहीं लिखना है, अब यहां पे हमें लिखना है मिन, दैट इज मिनिमम. प्रोग्राम को सेव करते हैं पहले और कंपाइल करते हैं. अब ये प्रोग्राम रन करने में, सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है वो नहीं चलेगा. नाउ अगेन सेव द प्रोग्राम. F2 प्रेस किया तो भी चलेगा ओनली. एंड नाउ कंपाइल. मिन इज इक्वल टू सी के बाद ये जो एरर्स है वो देखते जाइए. मिन इज इक्वल टू सी के पास मैंने बाद में सेमीकोलन नहीं दिया था. सो कंपाइल इट. अब ये प्रोग्राम कैसे रन करना है? तो पहले एक काम करो कि पहला नंबर मिनिमम ले लो और चेक करो हमारा रिजल्ट आता है क्या. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3. यस, आ गया. फिर कंपाइल करो, रन करो, दूसरा नंबर मिनिमम ले लो, रिजल्ट आ गया. यस, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5. और तीसरा नंबर मिनिमम लेके देखो, अगर तीनों बार मेरा रिजल्ट करेक्ट आता है तो यस, माय प्रोग्राम इज करेक्ट. तो तीनों बार हमारा मीन्स ए लेने के बाद भी करेक्ट आ गया, बी लेने के बाद भी करेक्ट आ गया, सी लेने के बाद भी करेक्ट आ गया. सो माय प्रोग्राम इज करेक्ट. दिस इज रिगार्डिंग इफ स्टेटमेंट. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है इफ एल्स. इसलिए मैं अब क्या करूंगा, इसको तो सेव कर लूंगा और मेरा जो पहला प्रोग्राम है x.c, शायद मैंने उसको नाम दिया था गलती से, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ x.cpp. ये ओपन करता हूँ. मैंने ये बताया था उस दिन कि एक प्रोग्राम ऐसा स्ट्रक्चर लिख के रखो कि उसके बाद हमें बाद में लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ. अब इफ एल्स का, इफ एल्स में मैंने क्या कहा था कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट, आइदर रिजल्ट इज ट्रू और रिजल्ट इज फॉल्स. तो प्रोग्राम हम लिखेंगे, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. एक नंबर अगर मैं आपको देता हूं तो वो नंबर को वेदर दॅट गिवन नंबर इज डिव्हिजिबल, 7 पूर्ण भाग जातो का नाही हे जर चेक करायचं असेल आपल्याला तर त्यासाठी प्रोग्राम लिहायचा. तर आता इथे किती व्हेरिएबल लागतील, तर ओनली 1 व्हेरिएबल इज सफिशियंट. एकच नंबर आहे. सो इंटीजर n, CLR SCR, Cout, एंटर 1 नंबर, कौन सा भी एक नंबर इनपुट करो, सीन n. नाउ हाउ टू चेक वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल, इसको हम सेव एज कर लेते हैं if.cpp.
Now, how to check whether number is divisible by 7 or not? If you remind, then there are two operators. One is divided by and another one is percentage. Percentage operator is used to calculate remainder after division. Any number is divisible by 7, it means that that number modular division 7 is equal to 0 अगर आता है तो that number is divisible by 7, otherwise that number is not divisible by 7. तो यहाँ पे मुझे फिर एक इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी. सो इफ n mod 7 इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय, त्या नंबरला 7 पूर्ण भाग जातो का. इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, then I have to display Cout. Yes, number is divisible by 7. And if that number is not divisible by 7, means if n mod 7 is not equal to 0, then I have to display that number is not divisible by 7. So इस if को हमें else लिखना पड़ेगा. Else Cout no number is not divisible by 7. रन करके देखते हैं. समझो मैंने पहले 21 दे दिया नंबर. So whether 21 is divisible by 7? Yes, 7 3 21. Remainder, when remainder is 0, it means that number is divisible by another number. So yes, number is divisible by 7. अब मैं यहाँ पे इसकी जगह दूसरा नंबर देता हूँ. समझो enter one number. Number is suppose 23. Now check whether 23 is divisible by 7. No, 23 is not divisible by 7. So your result should be no, number is not divisible by 7. Yes, it will display that number is not divisible by 7. इसको भी हमने सेव कर लिया. फिर हम वो ex.cpp ओपन करते हैं. ये हो गया if else का. उसके बाद हमने लिया था nested if. Nested if means what? If a block of one if statement contains another if, then it is called as nested if. तो मैं अब यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम लिखूंगा. प्रोग्राम टू डिस्प्ले, थोड़ा अलग से प्रोग्राम लेंगे. वेदर गिवन ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 7. अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गए. ये प्रोग्राम के रिजल्ट कितने आएंगे? 3. फर्स्ट रिजल्ट इज नो, गिवन नंबर इज नॉट ऑड नंबर. सेकंड रिजल्ट इज यस, गिवन नंबर इज ऑड नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 7. और तीसरा रिजल्ट क्या आएगा कि गिवन नंबर इज ऑड नंबर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ पे 3 रिजल्ट आएंगे, लेकिन कॉमन चीज क्या है कि ऑड नंबर है क्या. ऑड नंबर रहा तो ही मुझे चेक करना है कि वेदर दैट ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम है. यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल लगेगा. सो इंटीजर n, CLR Cout, एंटर एनी नंबर. एक ही नंबर लेना है हमें. देन cin n. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू चेक वेदर गिवन नंबर इज ऑड नंबर और नॉट. हाउ टू चेक वेदर गिवन नंबर इज ऑड नंबर? इफ दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज ऑड नंबर. अगर 2 से 2 पूर्ण भाग जात नसेल नंबरला तर दॅट नंबर इज कॉल्ड एज ऑड नंबर. सम आणि विषम संख्या आपण ज्याला मराठीत म्हणतो ते. सो इफ n mod 2 इज इक्वल टू 1, कोणत्याही नंबरला लक्षात घ्या, इफ यू राइट m mod n, then what are the possibilities of result? Possibilities of results are from 1 to n minus 1. 1 to n minus 1. m mod n अगर है तो
पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट कितने हैं, 1 to n-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 नॉट 1। पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट्स आर फ्रॉम 0 to n-1। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो पॉसिबिलिटी कितने है रिजल्ट की, एक तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। 1 रहा तो ऑड है, 0 रहा तो इवन है। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा ब्लॉक लिख देता हूँ, और इसका एल्स क्या आएगा, इफ का एल्स सी आउट नंबर इज नॉट ऑड। ये हो गया हमारा पहला रिजल्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहला रिजल्ट क्या आएगा, नंबर इज नॉट ऑड। तो इस इफ का ब्लॉक लिखा है मैंने, इफ को ब्लॉक के बाद एल्स आया है, सो एल्स नंबर इज नॉट ऑड। Now if this condition is not satisfied, then it will display number is not odd. But if condition is satisfied, then here you have to write first of all Cout number is odd, because if n% 2 is equal to 1, then definitely number is odd. अब ऑड नंबर है ये तो पता चला मुझे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, वेदर दिस ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, क्योंकि हमने इसमें क्या लिखा है, टू चेक वेदर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे फिर दूसरी इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ n mod 7 इज इक्वल टू 0। पहले तो ऑड है ये पता चला, अब मुझे क्या चेक करना है कि n mod 7 इज इक्वल टू 0 है क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट, पहला रिजल्ट तो हमारा आ गया है, नंबर इज ऑड एंड इट इज डिविजिबल बाय 7, एल्स सी आउट but it is not divisible by 7। अब मैं ये जो नीचे गया है कर्ली ब्रेस उसको ऊपर ला लेता हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम, दिस इज माय एंटायर प्रोग्राम। You will get source code of these programs on the link which is shared in description of this video. So this is another program। अब हम देखते हैं, 3 रिजल्ट हमें चेक करने हैं। सॉरी, कहाँ पे है गलती, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, कहाँ पे रह गया, यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया, हो गया। नाउ कंपाइल द प्रोग्राम, इसको मैं पहले सेव एज कर लेता हूँ। नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है, सो नेस्ट इफ डॉट cp। नेस्टेड इफ किसे कहते हैं, अगर आपने देखा तो ये एक इफ स्टेटमेंट है, ये उसका ब्लॉक है, और उसके ब्लॉक में फिर एक इफ स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। पहले तो हम एक नंबर ऐसा देंगे कि विच इज़ नॉट ऑड, तो 22 इज नॉट ऑड नंबर, सो व्हेन आई गिव दिस नंबर योर रिजल्ट इज नंबर इज नॉट ऑड। ओके, इट्स गुड। नाउ कंपाइल द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब ऐसा नंबर देंगे कि जो ऑड भी है एंड विच इज डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो, सो 21 इज द नंबर। सो वेदर नंबर 21 is odd, yes, and whether it is divisible by 7, yes. So number is odd and it is divisible by 7। तीसरा लिखते हैं कि नंबर तो ऑड है लेकिन डिविजिबल बाय 7 नहीं है, 43। वेदर 43 is divisible by 7, no, but whether it is odd, yes. So number is odd but it is not divisible by 7 is my result। So these are the examples of normal introductory concepts and if else
and nested if statement. In next video lecture we are going to see the examples of looping statements for while and do while. Thank you for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.